Geography optional Premium Plus question answer series. So what is the relevance of Premium Plus here? The purpose of this video is to give you the extra idea so that you're going to have some additive advantage over your competitors. Let us see how. Now we're going to start with this question today. The question says कि why does the population composition matter? Discuss. तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हमें एम्फेसाइज करना है आंसर लिखते समय वो है व्हाई डज इट मैटर. हमें ये नहीं बताना कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड देयर डिफरेंट फीचर्स. हमें बताना कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ population composition over the other parameters of judging population different attributes. तो उसको एनालाइज भी करना है. नाउ यूपीएससी इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपके डिस्कशन की कैपेसिटी या फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटी को जज करेगी. और जितना अच्छा आप लॉजिकली एनालाइज करेंगे वो डिफाइन करेगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कितनी अच्छी है. What is your capacity to formulate policies? Given the data, can you make some interpretation about data or not? ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर से यूपीएससी जज करेगी. Now, let us see the meaning of different words here. So, population we all know, the number of people. What is composition? Composition is a ratio concept, or it is in a group, different groups, and their proportion in a given condition or given country or given system. Now, like in composition, population composition, we classify population into youth, mature and old. और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि like what dominates, where youth dominates and what time mature dominates, कब old stage dominate करेगी. तो एंड विल गोइंग टू सर्च सम लॉजिक बिहाइंड, हम उसके पीछे उसके रीजंस को भी देखते जाएंगे. And then we're going to compare these pattern with the different countries, like why in some countries we have the youth are more dominating, why in other countries we have the matures are having a dominance on other segments of people. So this is a theme of this question. Now इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि at the end of this video we're going to see the what should be the like a blueprint of writing answer. ना ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है आंसर लिखने के लिए. जब भी आप आंसर लिखें, अपने आंसर को लिखने से पहले आप आंसर की ब्लूप्रिंट रेडी करें. और ये विद द टाइम यू आर गोइंग टू लर्न, इट इज़ इन अ 2 seconds इवेंट. आप 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर आप ब्लूप्रिंट बना सकते हैं. सो ब्लूप्रिंट में क्या है, टू नो व्हाट इज़ ब्लूप्रिंट, let us look at this side. We have one answer written. An answer is written in a paragraph. So if I am going to block these paragraphs into different boxes, so each box represent different paragraphs. So we have the paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Now what is the right way to write answer? Paragraph wise or point wise? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं. इफ़ यू हैव a confusion regarding what like pattern to adopt, तो आप पैराग्राफ लिख करके you can place some dot, bullet point dot, or even you can put numbers 3, 4. तो it will come as both like a paragraph as well as a point wise. Now जब भी आप आंसर लिखें तो पैराग्राफ को डिज़ाइन करने से, लिखने से पहले उसके like कुछ की पॉइंट्स को होल्ड कर लेना चाहिए, बॉक्सेस बना करके कुछ की पॉइंट्स लिखना चाहिए. And so that when you are going to write answer, you are going to get everything prioritized. Points सब पहले आ जाएगा. तो this is a motive of this video is to give you the blueprint कि पहले पैराग्राफ में किस किस आइडियाज़ को लॉजिकली आपको एनालाइज करना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में क्या करना चाहिए, थर्ड पैराग्राफ में क्या करना चाहिए. तो दैट विल गोइंग टू लर्न व्हेन यू गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. ओके, लेट अस सी व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. तो जब डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा है द कॉम्पोजिशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ न पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द एज, जेंडर एंड अदर प्रॉपर्टीज सच एज मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशन. नाउ व्हाट इज इन स्ट्रक्चर हियर? नाउ एज वी हैव सीन जस्ट बिफोर, स्ट्रक्चर में क्या होता है, लाइक व्हेन वी कैटेगराइज लाइक पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड देन विल सी व्हाट इज देयर रिलेशन. आपस में कैसा रिलेशन है. रिलेशन मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, किसका रेशियो ज़्यादा है, किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है.
सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में बेसिकली जो हम क्लासीफाई करते हैं पॉपुलेशन को, उसमें एज और जेंडर, ये लाइक दीज आर द मेजर component, इसके बेसिस पे वी क्लासीफाई एंड वी लर्न population composition through population pyramid. What is population pyramid? Population pyramid is a graphical representation of this distribution, and we have different types of population pyramid. तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं और जो अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं और उसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे यहाँ पर। पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में होता है। वाई एक्सिस में वी कीप एजेस एंड इन एक्स एक्सिस वी कीप पॉपुलेशन, सम टाइम इन नंबर्स, अदर टाइम्स इन परसेंटेज। अब जैसा सुटेबिलिटी है उस तरह से रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल let us start with this pyramid. Now here we have a population written in numbers there in the x-axis, and we have like a different bar chart of female population and male population is given. Now these bar chart and the combination of the bar chart is known as histogram. So एक चीज़ याद रखना है कि like population pyramid is actually represented by different histograms. Okay, now one side we have the male, other side we have the female, and we have an age interval of 5 years, 0 to 4, and then we have a 4 to 9, and like ऐसे ही हमारा till we have an 80, 85, 90, 100 तक जा रहा होता है। It depends किस कंट्री में क्या होगा। Now one side we keep the population features of male, other side we keep a female. Now these are the bar chart. Again, if the length of the bar chart of the female side is less than the exactly same age में male side का जो bar chart है उसकी length में अगर female की side कम है, इसका मतलब है कि sex ratio is disturbing. Like we have a more male in comparison to the female. And if we have the female size, the bar length is more, इसका मतलब है कि sex ratio is favorable. So one side we keep in a male, other side we keep in a female. So एक ये advantage है इसका कि इसमें we can study two different genders at a time. Now this side, though we have an like x axis में we have a population, पर जो ये सबसे bottom वाला जो bar chart है ये सबसे young population को represent करता है, like population of 0 to 4, and 0 to 4 मतलब ये newly arrived like a population है, and this also indicates birth rate. तो जितनी लंबी ये बार चार्ट होगी उतना ज़्यादा बर्थ रेट होगा. So the longer the bar in the bottom, higher the birth rate, right? So these are logics we need to develop so that we can make a logical analysis about a different population pyramid. Now this height indicates what? So we write this side, we write यहाँ पर तो we have a population, this side we write age. तो y axis represent age. Now age यहाँ पर है till we keep according to the country. Sometime we write 85, other time we write 100, 90, ऐसा होता है. So like this vertical length indicates life expectancy. What is the life expectancy? Like it is like a normal age on an average of people of a given country used to survive. So horizontal line, birth rate, vertical line, life expectancy. So where do we have a death rate? Now the death rate is indicated by this curve. Now how? See, this is the birth rate. ये birth rate है. अगर सेम बार चार्ट ट्रांसलेट हो जाता है इसका मतलब है कि जो बच्चे पैदा हुए वो सर्वाइव कर गए. बट इफ द नेक्स्ट बार चार्ट, सपोज ये 1 नंबर है, लेट अस सपोज द बॉटम 1 इज अ 1, द नेक्स्ट इज द सेकेंड एंड थर्ड, ऐसा अकॉर्डिंगली वी हैव फॉर मेल एंड फीमेल, वी हैव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. नाउ अगर इफ द साइज ऑफ द फर्स्ट बार is exactly equals to the second, इसका मतलब है कि there is like no so drastic death rate. बट अगर इसकी साइज़ कम होती गई इसका मतलब है कि डेथ रेट बहुत ही प्रोमिनेंट है. सो द कर्व इंडिकेट्स अ डेथ रेट.
The degree of curve indicates speed of the death rate or rate of the death rate. मतलब कि if we have very like a steep turn, a slope, it means we have very high death rate. And if we have a normal like a slope, we consider as a low death rate. How you are going to see in a coming template. So this pyramid का जो last stage है वो death rate को दिखा रहा होता है. Now this segment like a age group from 15 to around like normally we take 40 45 और 50 आप ले सकते हैं. Sorry, for 59 तक normally we take it till 59 or around 60. So this segment is considered as working group. Now अगर किसी भी कंट्री में ये प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो उस कंट्री को हम लाइक इकोनॉमिकली हेल्दी कंट्री मानते हैं, बिकॉज दिस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन creates more of the assets, wealth for the country, earn more of the income, and this segment contributes more of the taxes. Now these are the like a kind of a dividend for the country. If this group dominates, इसका मतलब है कि demographic dividend उस country में, and these two segments are considered as a demographic burden, क्योंकि अभी ये earn करना start नहीं किए, they are dependent on the working group. So this segment is a working group. Now we can compare a different like this population pyramid of a different countries. तो नॉर्मली क्या है, पुअर कंट्री के केस में वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखेंगे कि जो बेस का जो बार चार्ट है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है बाकी से. सो दैट इज़ वाई वी हैव इन पुअर कंट्री वी हैव दिस पिरामिड इज लाइक जस्ट लाइक अ ट्री के जैसा होता है. एंड नाउ वी हैव सम डिफरेंट like features in this tree, like here one side we have a Niger, other side we have a Guatemala. अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि like in Niger we have very steep slope, whereas this side we have smooth, relatively smooth, not so steep but relatively smooth. तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये डेथ रेट को इंडिकेट करता है, तो आप देख सकते हैं और आपको ये एनालिसिस करके ये पता चल सकता है कि like a death rate in Nigeria is higher than the Guatemala. Now when you'll see the top portion of like this pyramid, both side, you'll find there are less people there in Niger and we have more people in Guatemala. इसका मतलब है कि life expectancy is better in Guatemala than in Niger. So like this population pyramid is having a one advantage that we can compare a different population parameters among different countries. क्योंकि क्वेश्चन था कि वाई इट मैटर्स, तो हमें ये चीज़ को एम्फोसाइज करना है. इवन फॉर द डेवलप कंट्रीज ऑल्सो वी कैन कंपेयर अमंग डिफरेंट कंट्रीज. नाउ आप यहाँ देख सकते हैं कि इन डेवलप कंट्री बर्थ रेट इज़ लेस देन व्हाट वी हैव इन द डेवलपिंग कंट्रीज. सो वेल्दी कंट्रीज जो होते हैं उसका बेस छोटा होता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट अपियरिंग एज एन अ ट्री. वो एक ट्री के जैसा नहीं दिखते हैं. सो वी हैव एन लाइक ए स्मॉल बेस, बट इनके जो वर्किंग ग्रुप है वो डोमिनेट करता है, और इसीलिए यहाँ पर इनकम ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है. यहाँ पर दे आर लिविंग इन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्रीज़ में. पर आप देख सकते हैं कि सुन दिस बल्ज, जो बल्ज अभी वर्किंग ग्रुप में है वो बल्ज धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो ये कंट्री एक तरह से एजिंग कंट्रीज़ भी हो रही होती है कि यहाँ पर ये जो सेगमेंट है जल्दी से वो 60s की तरफ चले जाएंगे, तो एज्ड कंट्रीज भी कहलाएंगे वहाँ पर. सो डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग अ वाइड बेस, डेवलप कंट्रीज आर हैविंग अ नैरो बेस. नाउ लेट अस सी अदर फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. इस पॉपुलेशन पिरामिड में 3 पोर्शन होते हैं एज वाइज, लाइक फ्रॉम 15 to 45. 45 to 49 के बीच का जो एज है इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. रिप्रोडक्टिव मतलब ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे हैव ए कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई पॉपुलेशन. सो दिस सेगमेंट डिफाइंस द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. अगर ये डोमिनेटिंग है तो ग्रोथ रेट फास्ट होगा, अगर ये डोमिनेटिंग नहीं है तो ग्रोथ रेट स्लो होगा. ना इसके नीचे में वी हैव प्री रिप्रोडक्टिव. ना प्री का मतलब अब
और 10 साल 15 साल के बाद ये प्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज में पहुँचेंगे तो ये और पॉपुलेशन को ऐड करेंगे. सो एंड ऊपर में भी हैव न पोस्ट रिप्रोडक्टिव. नाउ इफ द प्री रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन द रिप्रोडक्टिव, अगर नीचे का जो यूथ एज है उसकी जो प्रोपोर्शन है वो रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये लोग रिप्लेस कर देंगे, लाइक दिस वन विल गोइंग टू रिप्लेस बाय मोर नंबर्स. और इससे क्या होगा कि ज़्यादा बच्चे अब पैदा होंगे. सो व्हेन वी हैव द प्रोपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज़ मोर देन द रिप्रोडक्टिव, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसी होती है, बहुत ही एक्सपेंड करेगी, फास्ट होगी उस कंट्री में. बट इफ़ वी हैव अ रिप्रोडक्टिव इज हैविंग अ प्रोपोर्शन मोर देन द प्री रिप्रोडक्टिव, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि नाउ लेस पीपल विल रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव, less proportion will represent reproductive group, so it will going to create a low population growth rate. Okay, but when we have post reproductive, मतलब कि ये ऊपर का एज इज डोमिनेटिंग, तो ऐसी इकॉनमी और ऐसी कंट्री एज्ड कंट्री कहलाती. लाइक वहाँ पे क्या है, जैसे इट इज़ अ केस ऑफ जापान वेयर वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ post reproductive is much more than the rest of the things. So let us see again, when we have the bottom like a bar charts are dominating more, इसका मतलब है कि youth is having a more dominance in the population, and if the youth is having a more dominance, उस country को बोलते हैं youthful country और youthful population, अगर उनकी रेशियो ज़्यादा है तो. if we have like a middle segment dominates more, इसका मतलब एंड डोमिनेट्स मोर साइड बाय साइड, नीचे क्या होना चाहिए, उनके प्रोपोर्शन, यूथ के प्रोपोर्शन कम होने चाहिए. इसका मतलब है कि नाउ लेस पीपल विल गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस मिडिल सेगमेंट. इसका मतलब है कि नाउ अब ये यूथफुल नहीं रहा, ये एजिंग की तरफ बढ़ रहा है. सो वी कंसिडर दिस कंट्री एज एन एजिंग कंट्री. लाइक नाउ यू कैन सी दिस, द चाइना इज इन दिस एग्जाम्पल, लाइक इट suitably fit with this example. Now if we have a top one dominates, अगर like a 45 के ऊपर का जो सेगमेंट डोमिनेट करता है, तो जैसा कि जापान के केस है जो एग्जांपल बताएं, ऐसी कंट्री को हम एज्ड पॉपुलेशन कहते हैं. सो द बॉटम, ब्रॉड बॉटम इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पर we have a very high birth rate, but due to the like arrival of a good health and medical facilities, we have controlled death rate. Now जब आप डेवलप कंट्री में देखेंगे तो मिडिल एज जो सेगमेंट है वो डोमिनेट कर रहा होता है यहाँ पर, एंड दे हैव अ स्लो ग्रोथ रेट, एजिंग पॉपुलेशन होती है यहाँ पर. नाउ लेट अस सी द अदर यूजेस ऑफ दिस pyramid. And in this pyramid, as we have discussed, we have different categories economic wise. We have children, working age, and then elders. Children and elders are considered as dependents. Dependents means they do not have an earning capacity, तो वो वर्किंग एज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. वर्किंग एज इज नॉन डिपेंडेंट सेगमेंट. तो किसी भी कंट्री के लिए अगर इकोनॉमिकली वाइबल होना है तो नॉन डिपेंडेंट को, उनके प्रोपोर्शन को डिपेंडेंट से ज़्यादा होना चाहिए. सॉरी, डिपेंडेंट्स, नॉन डिपेंडेंट को डिपेंडेंट से ज़्यादा होना चाहिए. सो द वर्किंग ग्रुप इज हैविंग अ मोर नंबर्स. इससे क्या होगा कि टैक्स जनरेशन ज़्यादा होगा, लाइक इनकम ज़्यादा होगा उस कंट्री में, एंड कंजम्पशन कम होगा. ओके, वैसे तो कंजम्पशन होना अच्छी बात है. इफ़ वी हैव द कंजम्पशन इज़ मोर, इसका मतलब है कि द मार्केट इज़ वेरी वाइड. बट अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो गया इनकम से, तो सेविंग नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. और इन्वेस्टमेंट क्या करता है, एक अर्निंग कैपेसिटी को ना लाइक इन्हेंस करता है, ज़्यादा एसेट्स जनरेट करता है कंट्री में, और उससे क्या होता है, ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब हो सकता है, ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, रैपिड ग्रोथ रेट अटेंड किया जा सकता है, जीडीपी ग्रोथ रेट अटेंड किया जा सकता है. सो लाइक अ पॉपुलेशन पिरामिड इज इवन यूजफुल डिफाइनिंग द इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द कंट्री, कि कंट्री कैसी है अभी, लाइक रिच कंट्री है कि पुअर कंट्री है. द वर्किंग ग्रुप और
non-dependent having in a more proportion to country is rich. So we have in a two graph, purple color and the blue color. So blue color is indicator of what? Developed country, wealthy country. ऐसी कंट्री वेल्दी होती है जिसका कि ब्लू हो, जिसमें वर्किंग ग्रुप ज़्यादा डोमिनेट रही होती है. सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी वी कैन लर्न. नाउ एज वी हैव डिस्कस दैट वी कैन इवन मैनेज टू सी द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. नाउ यहाँ पर देखिए कि पहले स्टेज में क्या है, वी हैव अ फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी, एक्सपेंडिंग, रैपिडली एक्सपेंडिंग. वाई? बिकॉज व्हेन यू विल सी the base is having a size more than the, if we have, I'm going to put 1 2 and 3, तो 1 का जो साइज़ है 2 से ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है. इसका मतलब है कि लाइक मोर पीपल विल रिप्रेजेंट दिस 2 सेगमेंट को. इसका मतलब है वी हैव वेरी फास्ट ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. नाउ इफ वी हैव, सो दिस वाज लाइक हैविंग इन सम, अगर इसको ध्यान से देखें तो वी हैव ना वेरी हाई डेथ रेट, राइट. तो डेथ रेट ज़्यादा होने से क्या होता है, बच्चे ज़्यादा पैदा भी होते हैं, क्योंकि लाइक अ फैमिली टेक्स अ चांस. उनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा बड़े फैमिली बच्चे पैदा करेंगे तो ज़्यादा सर्वाइवल नहीं होगा, तो कुछ बच जाएँ, उस होप से वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर ले जाते हैं. पर इस केस में जो सेकेंड स्टेज है, यहाँ पर क्या है, वी हैव एक्सपेंसन इज़ देयर, वहाँ एक्सपेंड होगा पर इसके जैसा एक्सपेंड नहीं होगा, लाइक जो स्टेज 1 की जैसा एक्सपेंड हो रहा था. नाउ वी हैव न, यस, मोर पीपल विल रिप्लेस सेकेंड ग्रुप को, पर इस बार रेशियो कम हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, लाइक कैटेगरी 1 के. तो यहाँ पर क्या है, वी हैव वेरी फास्ट ग्रोथ इन स्टेज 1. इसको मैं बोलूँ तो फास्ट, वेरी फास्ट ना. यहाँ रिलेटिवली वी हैव नॉर्मल फास्ट, वी डू नॉट हैव अ वेरी फास्ट. जब आप तीसरे स्टेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर वी हैव द रिप्लेसमेंट, सेकेंड ग्रुप है उसको देखिए लगभग उसी साइज़ की पॉपुलेशन रिप्लेस कर रही है, तो एक तरह से स्टेशनरी है. एंड व्हेन यू सी द फोर्थ वन, वी हैव लेस नंबर ऑफ पीपल इज रिप्रेजेंटिंग. देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो गया है नए बर्थ रेट का. इसका मतलब है कि पॉपुलेशन अब नेगेटिव है एंड देयर इज इन अ कॉन्ट्रैक्शन. अब जो पॉपुलेशन साइज होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो the population pyramid is even useful to see this trend, this population growth trend. So we have many like features ko we can analyze with this like a diagram. Now if we have in a triangular shape, it means we have the fast growth rate. If we have in a like a parallel और नीचे में अगर बेस उसका नैरो है तो इसका मतलब है स्लो ग्रोथ रेट और रादर नेगेटिव ग्रोथ रेट. ओके. Now population pyramid is even a record of the past. केवल ये हम फ्यूचर को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फास्ट होगा कि स्लो होगा, इससे हम कंट्री के पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं. हाउ? लेट अस सी दिस साइड वी हैव अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ रशिया. सो व्हेन यू सी लाइक दिस डिफरेंट सेगमेंट, सो यूथ रिप्रेजेंट फ्यूचर. दिस यूथ के डोमिनेंस को देखिए हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. And this mature segment represent present scenario of the country, and the old जो होते हैं ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक पास्ट में क्या हुआ होगा. जब आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कि द प्रोपोर्शन ऑफ द मेल इन कंपैरिजन टू द वीमेन और फीमेल वो कम है. आप देखिए ये ब्लू बॉक्सेस की साइज़ क्या है, व्हेन वी कंपेयरिंग इट विद द रेस्पेक्टिव corresponding bar chart of the female, the sizes are less. Why? These are the repercussion of the World War. World War में we have the more of the soldiers got killed and the family got broken. So that is why we have this disturbing arrangement of different bars. Now you can even see the government policies also. This deep indicates what? This is like a Chinese pyramid, पॉपुलेशन पिरामिड. और ये डिप है ये वन चाइल्ड पॉलिसी को दिखाता है. जैसे ही वन चाइल्ड पॉलिसी को फोर्स किया गया चाइना में, तो पॉपुलेशन में अचानक से लाइक 40 फीमेल 40 और ये सब होने के चलते अचानक से ड्रॉप हुआ. सो देयर दिस गैप इंडिकेट्स व्हाट द इम्प्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट आंसर. तो क्वेश्चन जो था कि लाइक डिस्कस
व्हाट आर दी लाइक व्हाई डज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मैटर, उसके लिए हमें पहले ब्लूप्रिंट बनाना है. ब्लूप्रिंट मतलब बॉक्सेस एक बनाएंगे, रफ बॉक्सेस, उसमें आइडियाज़ को लिखेंगे so that we can write in detail there in the answer. So for that I have created this 6 box. Now 6 boxes represent 6 paragraphs. Now why 6 paragraphs? Because when you write 30 to 35 words per paragraph, and when you're going to complete 6 paragraphs, it will come around 180 to 210. सो यूपीएससी में अगर 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है तो 10% का मार्जिन होता है. आप 10% ज़्यादा और 10% कम लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सीड लिमिट. आप 200 वर्ड्स के आंसर को आप 300 में नहीं लिख सकते. यूपीएससी को आइडिया रहता है कि कहाँ से 200 का लिमिट क्रॉस हुआ है, उसके आगे के आंसर को वो चेक नहीं करते. बट येस, दे गिव एन अ मार्जिन ऑफ अ 10% एट लीस्ट, सो यू हैव एन स्कोप इवन टू राइट 215 till 220 also you can write. So ideal क्या होता है कि like a 30 to 35 के वर्ड के पैराग्राफ में आंसर को लिखना चाहिए. Now how to write in a paragraph or whether to write it in a paragraph or not, तो उसमें अगर डाउट है तो आप पॉइंट डाल दीजिए या नंबरिंग डाल दीजिए, तो वो पैराग्राफ एज वेल एज पॉइंट वाइज दोनों हो जाएगा इसमें. सो ऑल द टाइम वी नीड टू राइट इन अ फिक्स पैराग्राफ. वाई? टू like to tell UPSC that I am having a very balanced analysis. जो भी aspects में मैं analysis किया हूँ वो बहुत ही balance है. And every paragraph represent very different like a perspective of some issues. Now second thing is what to write in every paragraph. जैसे मैंने आपको starting में बताया कि all the time we need to discuss why does it matter. Population composition को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके क्या relevances हैं, ये क्यों मैटर करता है पॉपुलेशन स्टडीज़ में. तो ऑल द टाइम द की वर्ड इज़ वॉट कि वाई डज इट मैटर. वी डू नॉट हैव स्कोप टू टेल एनीथिंग अदर देन दिस बिकॉज वर्ड लिमिट इज़ देयर. और वर्ड लिमिट होने से हमारे पास स्कोप ही नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन लिखें एंड देन कॉन्क्लूजन. बट येस, कॉन्क्लूजन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. कॉन्क्लूजन तो इसमें होना चाहिए, पर इंट्रोडक्शन के स्पेस नहीं होता, फिर बाकी चीज़ एस्पेक्ट्स लिखने का स्पेस नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज आप लिख रहे हैं, एक कैंडिडेट है जो वाई डज इट मैटर को एम्फेसिस करके हर पैराग्राफ में वही मैटर लिख रहा है, पर आपने ये सोचा कि मैं और भी डायमेंशंस अगर लिख दूं तो यूपीएससी को, एग्जामिनर को ये बताऊं कि मेरे पास इतने वाइड आइडियाज़ हैं. तो उस केस में क्या करेंगे, लेट अस सपोज एक हिंट देखते हैं कि आपने एक लिखा कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, व्हाट इज़ पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके शॉर्ट कमिंग्स क्या है, गवर्नमेंट रोल क्या है, आपके सजेशंस क्या हैं, कंक्लूजन क्या है. लेट अस अज्यूम कि अगर आपने विद डिफरेंट पैरामीटर्स इस तरह के पैरामीटर्स में डिफाइन किया, तो वी हैव अ कैंडिडेट वन दिस साइड एंड कैंडिडेट टू अदर साइड. इफ़ द कैंडिडेट इज ऑल द टाइम राइटिंग अबाउट मैटर एंड यू राइटिंग डिफरेंट थिंग, तो मार्क्स इसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसने जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस किया है. आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करने की जगह आप माहौल बना रहे हैं, मतलब यू आर राइटिंग मोर अदर थिंग्स टू इम्प्रेस. आप किसी एग्जामिनर को उसी समय कर सकते हैं जब उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर, जो उसका लाइक मेन आंसर हो उसको रिप्लाई करके. ऐसी चीज़ एग्जामिनर को और डिस्टर्ब करते हैं. उनको लगता है कि देखो ये मिस डायरेक्टेड है और ये मिसलीड कर रहा है मुझे. तो ऑल द टाइम यू नीड टू बी वेरी मच लाइक honest with your attempt all the time. We do not have any scope even to write introduction, but yes, we can manage writing in a 1-2 line of introduction. Now how to proceed? तो पहला पैराग्राफ जो है उसमें आपको लिखना चाहिए द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड, और इसमें बताना चाहिए कि वाई एक्सिस क्या बताता है, एक्स एक्सिस क्या बताता है, और उसके डिफरेंट पार्ट्स जैसे डेथ रेट कहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, हाइट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये सारे फीचर्स को आपको पहले पैराग्राफ में बता देना है. Now second paragraph, all the time we have to discuss why does it matter ना. तो second paragraph में आपको बताना है कि how population pyramid and its studies is having some more advantages over study of population map. जो population map होता है उसमें हम केवल दो ही चीज़ देख सकते हैं, कहाँ पर population ज़्यादा है और कहाँ पे population की density ज़्यादा है. So in population maps we can study only distribution एंड डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. पर पॉपुलेशन पिरामिड में हम बहुत सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं, लाइक परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो, देन किस एज ग्रुप का डोमिनेंस है, उस कौन सा है, मतलब वो लाइक
यूथ कंट्री है कि मैच्योर कंट्री है, एजिंग कंट्री है कि एज कंट्री है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है वहाँ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, माने वर्किंग ग्रुप ज़्यादा है कि अर्न ज़्यादा करती है वेल्दी कंट्री की पुअर कंट्री है, कंजम्पशन ज़्यादा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। हम ये सारे पैरामीटर्स को उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स को आपको पैराग्राफ 2 में ही कंक्लूड भी कर देना है लिख करके, एनालाइज करके कि वाई पॉपुलेशन पिरामिड मैटर्स और वाई पॉपुलेशन पिरामिड इज़ हैविंग एन एडिटिव एडवांटेजेस ओवर पॉपुलेशन मैप बाय टेलिंग दिस ऑल पॉइंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ इन थर्ड पॉइंट में आप ये भी बता सकते हैं कि देखो पॉपुलेशन पिरामिड से वी कैन स्टडी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। लाइक अगर पास्ट है तो लाइक ओल्ड एज के पैरामीटर्स को देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि पास्ट में इनके साथ क्या हुआ। प्रेजेंट में देख सकते हैं कि लाइक कौन सेगमेंट क्यों डोमिनेट कर रही है। पॉपुलेशन के लाइक बर्थ रेट को आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करा सकते हैं। नाउ फोर्थ में आप बता सकते हैं कि लाइक इट इज़ इवन यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स अमंग डिफरेंट कंट्रीज। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, और वी कैन इवन कंपेयर अमंग डेवलप्ड कंट्रीज एंड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। यूथ एज में है, एजिंग एज में है और लाइक एज्ड एज में है, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिफ्थ में आप पॉपुलेशन पिरामिड से इकोनॉमिक वाइबिलिटी को निकाल सकते हैं कि लाइक वेदर इट इज़ कंट्री इज़ वेल्दी और पुअर, सोसाइटी कैसी है। इफ़ वी हैव वेरी हाई बर्थ रेट तो लाइक अ फैमिली साइज़ कैसा होगा वहाँ पर। इफ़ वी हैव अ लो बर्थ रेट व्हाट वुड द नेचर ऑफ द फैमिली साइज़। एंड इफ़ वी हैव fertility rate is very high, birth rate is very high, so what is the status of this like women in the society, you can tell this all. And then finally you can conclude, आप ये बता सकते हैं कि लाइक पॉपुलेशन पिरामिड के कंक्लूजन करके कि लाइक ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग टूल है पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए, और इसके एडवांटेजेस हैं। तो आप इसी कुछ एस्पेक्ट से लेकर के कुछ विजनरी थॉट से अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं। और अगर ये इस तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो यू कैन राइट इन अ कमेंट्स कि किस क्वेश्चन पे चाहिए और क्या आप इसमें एक्स्ट्रा चाहते हैं। और चैनल पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इसको देख सकते हैं इस चैनल को। आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत ही डेप्थ में और अच्छे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू।